Yes, good morning all of you. Morning, sir. Okay, so we had started a new chapter yesterday and we had taken the introduction part of this chapter where I told you what will be the content of this chapter when we draw out our foreign policy, or if any country is trying to draw or make its foreign policy, what will be the major important factors which they have to keep in mind. So we had discussed two types of factors. So we had discussed two types of factors that were internal and external, or we can say domestic factors or the international factors or external factors. Internal, external, you can remember. So again, I have written the definition because this definition is important whenever you have to think about the foreign policy. So it reflects, foreign policy reflects the interest of nation and interplay of domestic or internal and international or external. I have written both the names. You can use domestic and internal also, international and external also. So whenever we have to think about the interest of our nation, we have to think about these two factors also before drawing the foreign policy. इतना समझ आ गया था? Then what is the aim of foreign policy of India when we say? What was the aim of our foreign policy? So all the countries have different sorts of aims and requirements from their foreign policy, depending whether that is a underdeveloped country, that is a developing country, or a developed country. So India being a developing country, so our aim for drawing the foreign policy after independence period was to respect sovereignty, because we had hard-earned independence for around 200 years. We were under the British rule, and finally we got the independence. So we wanted to respect the sovereignty of the other countries also. Sovereignty means when we are free from the rule or the dominance of the other power. Like we were under the Britishers, we were their colony. But once we got the freedom from their rule, we attained sovereignty. Yes, come on. So we had, so this was the aim where we will respect the sovereignty of all the nations around the world. Again, problem of again one student. Just a second. Okay, so as I said, the major aim of India's foreign policy, मतलब जो हमें draw करनी थी, but उसका एक aim भी होगा ना, what will be the objectives, हमें achieve करना क्या है? So we will respect the sovereignty of other nations. क्योंकि हमें पता है sovereignty की, freedom की क्या value है. So we will respect the sovereignty. Who doesn't know the meaning of sovereignty? Once we attain the freedom, it means we are a sovereign country. It means हमारे पास किसी और का dominance नहीं है. We'll have our own constitution, we'll have our own government, we'll have the governance according to the democratic form of government. तो हमारे ऊपर किसी upper power का dominance नहीं है. So it means we became sovereign. So it means India thought that we will respect the sovereignty of each country around the world, all the nations, and achieve security. And we'll look and have a security for our country by peace. It means we'll have a good relations with other countries. If you want our country and our territories to be protected properly, ताकि disintegration ना हो, ताकि integrity और unity maintained रहे इंडिया की, that we'll achieve through peace. Security doesn't mean कि we'll have more powerful army or we'll have conflict with other countries ताकि हम सिक्योर रहे. बट हमारा आइडिया क्या था कि सिक्योरिटी को अचीव करना है बाय पीस. इसमें कौन सा पार्ट भी आ जा रहा है हमारा? नॉन अलाइड मूवमेंट. हमने लिया था नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसमें हमने ट्राई किया था विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बट हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं है. हम सिक्योरिटी भी चाहिए, बट विल अटेन सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ पीस. हम पीस को प्रमोट करेंगे. तभी कोल्ड वॉर में हम क्या मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे, वेयर वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड. उन दोनों के बीच में लड़ाई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको कम करने की कोशिश इंडिया एज अ मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट करता रहा. तो ठीक है, ये तो एक हमारा एम का, कहीं पे आप यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, देन हम समझेंगे आर्टिकल 51 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें क्या लिखा हुआ है रिलेटिंग टू फॉरेन पॉलिसी. कुछ लिखा हुआ है इन आर्टिकल नंबर 51, नाम याद रखना 51. ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती है हमारी, व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 51 आता है, कुछ हमें समझाता है अबाउट आवर फॉरेन पॉलिसी. वो हम आगे पढ़ेंगे. तो मैंने कहा था, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. नाउ आई विल बी रीडिंग, तो आपको समझ आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं. व्हेन इंडिया अटेन्ड द इंडिपेंडेंस, एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे थे इंडिया के, सर्कमस्टांसेस अराउंड द वर्ल्ड कैसे थे. दैट इज व्हाई द टॉपिक नेम इज international context. So India has born in a very tiring and challenging international context. When India was born, it means when we attained freedom, outside condition जो वर्ल्ड की थी बहुत ज़्यादा challenging थी, difficult situations सामने थी, because the world had witnessed a devastating war and was grappling with the issue of reconstruction. Just क्या खत्म हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. देयर वाज क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप, और सारी यूरोपियन कंट्रीज क्या करने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी. जो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे उभरने की कोशिश कर रही थी. जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल क्राइसिस हुए थे उससे ऊपर बढ़ रहे थे. यूरोपियन यूनियन हमने पढ़ा था, ठीक है. Yet another attempt to establish an international body was underway. एक इंटरनेशनल बॉडी दोबारा बना. उससे पहले कौन सा था हमारा? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा इंटरनेशनल बॉडी बना था? लीग ऑफ
इंटरनेशनल बॉडी बोल रहा हूँ मैं, हमने इससे पहले यूनाइटेड नेशंस पढ़ा था ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था ना, तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर नाउ लीग ऑफ नेशंस, बट इट टोटली फेल्ड, उसके जो एम्स से ऑब्जेक्टिव्स थे उसको फुलफिल नहीं कर पाया और सेकंड वर्ल्ड वॉर फिर से हो गया। तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता और हमें इंडिपेंडेंस भी मिल रही है, तो इस टाइम पे एक प्रोसेस और चल रहा था कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशंस। तो ये भी आउटसाइड स्ट्रक्चर पता है ना क्या चल रहा था वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था एंड वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशंस। Yet another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerged as a result of the collapse of colonialism, like India, एशिया में, इंडिया और एशिया में और भी कंट्रीज थी, इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। These were the continents जहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, बट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे सबको क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई। तो वो क्या थी, न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। तो वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट कंट्रीज का नंबर क्या हो गया, दैट इंक्रीज्ड। ओके ओके, सो एट अ वर्ल्ड लेवल हम जब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी बनती है, उससे पहले एक्सटर्नल रिलेशन देख लें। तो एक और चीज क्या बोली मैंने, न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज बढ़ गया था। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ऐसे ही फ्रॉम फ्रेंच रूल, फ्रॉम डच रूल, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अलग अलग कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिलती है एट द सेम टाइम आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। इस टाइप की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। And most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. And all these newly independent countries, decolonized, जिनको freedom मिली थी from the British rule or from French rule, from Dutch rule, ये सारी countries एक common challenge के साथ जो थी struggle कर रही थी। common challenges क्या थे इनके, welfare and democracy। welfare चाहिए था, it means they were talking about development and they wanted to establish democracy। democracy का meaning इन लोगों के लिए बहुत important था। ये इतने सारे years से किसके अंडर थे, ब्रिटिश रूल या कॉलोनीज बने हुए थे। वेयर कॉलोनीज में इनको क्या नहीं थी, कोई भी फ्रीडम, कोई भी राइट नहीं था। वहाँ पे किसका रूल होता था, ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो डिक्टेटरशिप थी वहाँ पे, तो दे वर नॉट हैविंग एनी बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो सबसे पहले जब हमें फ्रीडम मिलती है तो हमारी एस्पिरेशंस, एक डिजायर्स होती है ना कि हमारी लाइफ कैसी होगी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले क्या, हमें राइट टू वोट होगी, हमारा भी ओपिनियन होगा गवर्नमेंट में, हम कोई से भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल दीज वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, जो भी कॉलोनीज थे। तो कॉमन चैलेंज था ये वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी फॉर ऑल। तो ये अभी हम एक्सटर्नल रिलेशंस की सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन थी वर्ल्ड में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि उसके बेस पे ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या। तो मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमारा क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था हमारा, बहुत सारी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर्ल्ड में आई थी और वो सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज्ड इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एंड उन सब का एक ही कॉमन गोल था, वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि सबसे पहले वो एक छोटा सा नेशन बॉर्न हुआ है, तो उसे अगर अपने आप को स्टैब्लिश करना है, वो नहीं चाहता कि वो दोबारा से कॉलोनी बन जाए किसी सुपर पावर का, तो वो क्या करेगा, अपने आप को डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पे स्टैब्लिश करेगा, प्लस वेलफेयर की बात करेगा, कैसे हम इकोनॉमिकली ग्रो करें, अपने सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को कैसे इक्वली हम डेवलप करें। तो ये कुछ एम्स थे सारी कंट्रीज, अब पर्टिकुलरली इंडिया की। फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दीज कंसर्न्स इन द पीरियड इमीडिएटली। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये सारे कंसर्न्स, वेलफेयर के, डेवलपमेंट के और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पूरी कंट्री डेमोक्रेसी पे वर्क करे, ये सारा रिफ्लेक्ट करता है इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो हम लोग पढ़ी है। और आप वैसे भी हमने 3 चैलेंजेस जो पढ़े हैं उससे भी रिफ्लेक्ट होता है हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence. Apart from these factors, at the global level, India has its own share of concerns. अब क्या आ गया? ये तो हमने external relations देख लिए, अब कुछ internal problems भी थी इंडिया की, वो भी देखते हैं क्या है। Apart from these factors, at the global level, India has its own share of concerns. The British government left behind the legacy of many international disputes. कल मैंने यहाँ पे point लिखा था, legacy of इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ब्रिटिशर्स वेंट अवे, हमें फ्रीडम मिल गई, बट वो जिस तरीके से गए वो प्रॉपर्ली मैनेज करके नहीं गए सारी कंट्रीज को। लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान कंटिन्यूसली वेयर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर बॉर्डर्स उन्होंने ड्रॉ नहीं किए। उनको ऐसा लगता है कि वो उनका, हमको लगता है हमारा, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्लियर आउट नहीं किए बॉर्डर लाइंस। चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो लगता है या वो चाइना के साथ लगता है या छोटी छोटी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, कुछ ना कुछ हमारे इश्यूज है वो हमने साउथ एशिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो चैप्टर है, जब हम इंडिया के रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा क्या हमारे उनसे एग्रीमेंट्स है और कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे हैं कि इंडिया सेंट्रल है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साउथ एशिया, उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि उसके किनारे बहुत सारी कंट्रीज हैं और सेंट्रल पार्ट में कौन है, इंडिया। तो इंडिया एक बहुत मेजर पार्ट है साउथ एशिया का, इसी वजह से ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट सब कंट्रीज के इंडिया के साथ है।
और ये रीजन है ब्रिटिश का भी कि ब्रिटिश ने इस टाइप से छोड़ के गए थे इंडिया को कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कंटिन्यूसली बने हुए हैं। इफ दे वांटेड कुछ अच्छी चीजें वो करके जा सकते थे इंडिया के लिए, और तो रिसोर्सेज तो हमारे यूज कर लिए थे, बट ये कॉन्फ्लिक्ट्स कभी ना होते। पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन के लिए उन्होंने हाँ कहा, सपोर्ट किया, पार्टीशन हो गया, बट पार्टीशन को क्लियर नहीं किया कि बाउंड्री कितनी पाकिस्तान की होगी कितनी इंडिया की होगी, ठीक है। Apart from these factors at the global level, India has its own share of concern. The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressure. उसे partition के और pressure आया इंडिया पाकिस्तान में, around 10 lakh people were killed. And task of poverty alleviation was already waiting for fulfillment. एक task और था हमारा, ये challenges आ रहे हैं जो हम already first chapter में पढ़ चुके हैं, ठीक है। This was the overall contest in which India started participating. अपने आप से आप बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने 3 challenges पढ़ लिए हैं। कैसे हमारी कंट्री बॉर्न हुई थी, पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का, उसमें पार्टीशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की हमने बात किया। प्रिंसली स्टेट्स की बात करता हूँ, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, यहाँ पे डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, व्हाइल दे वर गोइंग दे गेव देम द ऑप्शन दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड इफ दे वांट दे कैन बी अ इंडिपेंडेंट नेशन। उनकी एक स्टेटमेंट, दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर वल्लभ भाई पटेल to integrate these princely states to India. Although we got successfully he did that task, but उनको difficulty बहुत हुई क्योंकि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि उनके पास ऑप्शन होगा, वो पाकिस्तान के साथ भी मर्ज हो सकते हैं, इंडिया के साथ भी मर्ज हो सकते हैं, इंडियन यूनियन में या इंडिपेंडेंट। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो तभी कह रहे हैं ब्रिटिशर्स जब गए उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हमारे लिए इमर्ज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एक्सटर्नल, और ऐसा नहीं लिमिटेड है, आप इसमें बहुत अपने आप से भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट बुक पढ़ ली है, समझ लिया, सेकंड बुक का फर्स्ट 2 चैप्टर पढ़ लिया है, सारा कंटेंट फॉरेन पॉलिसी में उन्हीं चैप्टर्स का है, ओवरलैपिंग है, ये चैप्टर के ओवरलैपिंग है। फर्स्ट पार्ट की कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स हो गया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया हो गया, और इसका फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, 2 चैप्टर, उन सब का कंटेंट इसमें आपको कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग मिलेगा। As a nation born in the backdrop of the World War, तो इंडिया वर्ल्ड वॉर के बाद जस्ट बाद ही इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस विद एन एम टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी। मैंने क्या बोला था, ठीक है। तो एम क्या था हमारा, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें मिलती है क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था तो हमें सबकी सॉवरेनिटी को हमें रिस्पेक्ट करना था ऑफ अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। दिस एम फाइंड्स एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो बोला है, ये जो एम है, ये लिखा हुआ नहीं है, इसका कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्शन कहाँ पर मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 51 में। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमने उसको फॉलो करने के लिए उसको कहाँ डाला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, इट मींस ये पॉलिसीज किसके लिए होती है, ये गाइडलाइंस डायरेक्शंस एक गवर्नमेंट के लिए होती है। व्हेन दे आर ड्राइंग द पॉलिसीज फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी, दे हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, वो क्या होती है, जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है, हाउ दे विल यूज दिस पॉलिसीज। और डायरेक्टिव्स होते हैं, तभी नाम क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्ट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए गवर्नमेंट को, सो दैट देयर पॉलिसीज आर वेल इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द लॉज। तो इसको समझने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या था, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पीछे देखिए बॉक्स है ब्राउन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। Article 51 of the Indian Constitution lays down some directive principles of state policy on the promotion of international peace and security। तो 51 आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर एक आर्टिकल है 51, उसमें हम बात करते हैं किसकी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम इंटरनल मैटर की इसमें बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है हमें कैसे बाहर की कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात अगर हम करते हैं तो कैसे मेंटेन करनी है पीस एंड सिक्योरिटी। मेजरली आर एम वाज कि हमें सिक्योरिटी कैसे प्रिवेल करनी है, थ्रू पीस। अगर हमारे रिलेशंस आसपास अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली पीस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेट्स एंड इंडिया, 2-3 इसके अंदर पॉइंट्स हैं, ये सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो जैसे 4 दिए हुए हैं तो आपका मल्टीपल चॉइस में इससे बन सकता है, हो सकता है, ठीक है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इस टाइप की एक्टिविटीज करिए, इस टाइप की पॉलिसीज मेकिंग करिए कि हम हमेशा क्या प्रमोट करें, पीस एंड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद नेशंस, ऑनरेबल रिलेशन, दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो मेरी रिस्पेक्ट मिलेगी, इस टाइप का रिलेशन हमें नेबरिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रखना है। Foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of the organized people with one another।
इंटरनेशनल लॉज होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो लॉज होते हैं उसे फॉलो करना है, उसे रिस्पेक्ट करना है, इनफैक्ट अपना पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन भी उसमें देना है। लाइक इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेज या बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग पॉलिसीज होती है, उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करती है एक्टिवली, ठीक है। encourage settlement of international disputes by arbitration, तो जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं हमारे या और कंट्री से, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी हम कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे हम करेंगे। इट इज टोटली वी विल वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पीस एंड डेकोरम एट द वर्ल्ड लेवल। ग्लोबली हम हमेशा जो काम करेंगे वो पीस, डेकोरम और डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। हाउ वेल डिड द इंडियन स्टेट लिव अप टू दीस प्रिंसिपल्स, अब बात है ये लिखा हुआ है, ये कोई इसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फॉलो नहीं किया है, ये नॉन जस्टिसेबल है। हाउ डिड इंडिया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें हमने कितना वर्क किया इस प्रिंसिपल के ऊपर इन द फर्स्ट 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस। यू मे कम बैक टू दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए वापस आइए। Just as both internal and external factors guided the behavior of an individual or a family,